Good morning, everyone. Today, in General Science Biology, we will study the remaining subtopics of chapter number 9, that is heredity and evolution. This is vision number 9. In this, we will study some remaining subtopics. Among them, first of all, we will study about the speciation. Speciation is the origin of new species during gradual time period or during the process of gradual evolution is known as the speciation. Before studying it in detail, we must know about some terminology. First, we will take microevolution. The changes are small even though they are significant. They simply change the common characteristic of particular species. Genetic drift is a mechanism of evolution in which, due to chance or sampling error, genetic drift occurs in population on infinite size, but its effects are strongest in small populations. Natural selection is the process through which populations are naturally variable, meaning that they are all different some ways. This variation means that some individuals have traits better suited to the environment than others. At this time, we will take the example of the beetle population. Now the question arises the how this new species they come into existence. That can be explained by the taking the example of the group of beetles as we had studied in the last class. That we thinking about this that splits into two population that cannot reproduce with each other. When this happens, they can be called two independent species. So, can we extend the reasoning we have used about to explain such speciation? Now, we will consider the another situation in which if the bushes the beetles feed on are spread widely over a mountain range, the beetle population becomes very large as a result. But individual beetles feed mostly on a few nearby bushes throughout their lifetime. They do not travel far. So, in this huge population of beetles, there will be subpopulations in neighborhoods since male and female beetles have to meet for reproduction to happen. Most reproduction will be within these subpopulations. Of course, an occasional adventurous beetle might go from one side to another, or a beetle is picked up by a crow from one side and dropped in the other side without being eaten. In either case, the migrant beetle will reproduce with the local population. This will result in the gene of the migrant beetle entering a new population. This kind of gene flow is bound to happen between populations that are partly but not completely separated. Two such subpopulations, a large river comes into existence. The two populations will be further isolated. The levels of gene flow between them will decrease even further. Over generations, genetic drift will accumulate different changes in each subpopulation. Also, natural selection may also separate differently in these different geographical locations. So, for example, in the territory of one subpopulation, crows are eliminated by eagles, but this does not happen for the other subpopulation, where the crow number are very high. As a result, the green variation will not be selected at the first site, while it will be strongly selected at the second site. Together, the process of genetic drift and natural selection will result in these two isolated subpopulations of beetles becoming more and more different from each other. Eventually, members of these two groups will be incapable of reproducing with each other, even if they allow to meet. There can be a number of ways by which this can happen. If the DNA changes are severe enough, such as a change in the number of chromosomes, eventually the germ cells or reproductive cells of the two groups cannot fuse with each other, or a new variation emerges in which green females will not mate with the red males.
but only with green males. This allows very strong natural selection for greenies. Now, if such a green female beetle meets a red male from the other group, her behavior will ensure that there is no reproduction between them. Effectively, new species of beetles are being generated. आज हम जीव विज्ञान में अध्याय 9 के अंतर्गत, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, इसके अंतर्गत बचे हुए सब टॉपिक का अध्ययन करेंगे और यह वीडियो नंबर 9 है। इसमें हम जाति उद्भव का सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे। जाति उद्भव, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि एक नई जाति का उद्गम होना या निर्माण होना। यह जाति कई पीढ़ियों के परिवर्तन के फलस्वरूप जब एक नई जाति का निर्माण होता है तो उसे जाति उद्भव कहा जाता है। इसको प्रारंभ करने के पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे जो कि हमें इसको समझने में सहायक होगी। सबसे पहले हम सूक्ष्म विकास के बारे में पढ़ेंगे। यह परिवर्तन बहुत छोटे तथा महत्वपूर्ण होते हैं कि ये प्रजाति की समष्टि के सामान्य लक्षणों में परिवर्तन लाते हैं। अगला है आनुवंशिक विचलन। उत्परिवर्तन, वर्ण अथवा स्थानांतरण के अलावा संयोगवश किसी जनसंख्या की जीन आवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को आनुवंशिक विचलन कहते हैं। इसके पश्चात हम प्राकृतिक वर्ण का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वर्ण अर्थात जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यह एक धीमी गति से क्रमशः होने वाली नॉन रैंडम प्रक्रिया है। प्राकृतिक वर्ण ही जैव विकास की प्रमुख कार्यविधि है और इस संपूर्ण टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हम भ्रंगों के समूह का अध्ययन करेंगे जो कि हम पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि नई स्पीशीज़ या प्रजाति का उद्भव किस प्रकार हो सकता है या होता है। जैसा कि हमने पहले भ्रंगों के विभिन्न समूहों के बारे में चर्चा की थी, जिसे हमने पहले पढ़ा था कि एक समय लाल रंग के भ्रंग होते थे, फिर हरे रंग के भ्रंग का उत्पत्ति हुई और फिर नीले रंग के भ्रंगों की भी उत्पत्ति हुई। तो ये भ्रंगों का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ उसको समझने के लिए हम जाति उद्भवन के सहायता से समझेंगे। जैसे जाति भ्रंगों का जो समूह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दो भिन्न समष्टियों में बढ़ जाए तो आपस में जनन करने में असमर्थ होंगे। जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब हम उन्हें दो स्वतंत्र प्रजाति या स्पीशीज़ कह सकते हैं। अब क्या होगा कि यदि वे झाड़ियाँ जिन पर भ्रंग भोजन के लिए निर्भर करते हैं एक पर्वत श्रृंखला के बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैल जाए, जिसके परिणाम स्वरूप समष्टि का आकार भी विशाल हो जाएगा, परंतु व्यष्टि भ्रंग अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ झाड़ियों पर ही निर्भर करते हैं। वे बहुत दूर नहीं जा सकते। अतः भ्रंगों की इस विशाल समष्टि के आसपास उप समष्टि होगी क्योंकि नर एवं मादा भ्रंग जनन के लिए आवश्यक हैं। अतः जनन प्रायः उन उप समष्टियों के सदस्यों के मध्य ही होगा। कुछ साहसी भ्रंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं अथवा कई बार या परिस्थितिवश कोई कौवे एक भ्रंग को या अनेक भ्रंग को एक स्थान से उठाकर बिना हानि पहुंचाए दूसरे स्थान पर छोड़ देते हैं। दोनों ही स्थितियों में अप्रवासी भ्रंग स्थानीय समष्टि के साथ ही जनन करेगा। परिणाम स्वरूप अप्रवासी भ्रंग के जीन नई समष्टि में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार का जीन प्रवाह उन समष्टियों में होता रहता है जो आंशिक रूप से अलग अलग हैं परंतु पूर्ण रूप से अलग नहीं हुए हैं। यदि इस प्रकार की दो उप समष्टियों के मध्य यदि एक विशाल नदी आ जाए तो दोनों समष्टियाँ और अधिक पृथक हो जाएंगी। दोनों के मध्य जीन प्रवाह का स्तर और भी कम हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक पीढ़ियों में आनुवंशिक विचलन प्रत्येक उप समष्टि में विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप उनका संग्रहण होता जाएगा। भौगोलिक रूप से अलग हुई इन समष्टियों में प्राकृतिक चयन का तरीका भी अलग होगा।
उदाहरण के लिए एक उपसमष्टि की सीमा में यदि बाज या चील द्वारा यदि कौवे समाप्त हो जाते हैं, परंतु दूसरी उपसमष्टि में यह घटना नहीं होती है, वहाँ पर कौवों की संख्या बहुत अधिक है। परिणाम स्वरूप पहले स्थान पर भृंगों का हरा रंग का प्राकृतिक चयन नहीं होगा, जबकि दूसरे स्थान पर इसका चयन होगा। भृंगों की इन पृथक उपसमष्टियों में आनुवंशिक विचलन एवं प्राकृतिक वर्ण के संयुक्त प्रभाव के कारण प्रत्येक समष्टि एक दूसरे से अधिक भिन्न होती जाती है। यह भी संभावना है कि अंत में इन समष्टियों के सदस्य आपस में एक दूसरे से मिलने के बाद भी अंतर्जनन में सफल न हों। इसके अलावा अनेक तरीके होते हैं जिनके द्वारा यह परिवर्तन संभव हो सकता है। यदि डीएनए में यह परिवर्तन आता है, जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तो दो समष्टि अर्थात जनसंख्या के सदस्यों की जनन कोशिकाएं अर्थात युग्मक संलयन करने में असमर्थ हो सकते हैं। एवं ऐसा भी संभव है कि ऐसी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएं जिसमें हरे रंग की मादा भृंग लाल रंग के नए भृंग के साथ जनन की क्षमता ही खो दे, वह केवल हरे रंग के नर भृंग के साथ ही जनन कर सके। यह हरे रंग के प्राकृतिक वर्ण के लिए एक अत्यंत दृढ़ परिस्थिति है या अनुकूल अवस्था है। अब यदि ऐसी हरी मादा भृंग दूसरे समूह के लाल नर से मिलती है तो उसका व्यवहार ऐसा होगा कि उनके मध्य जनन ही नहीं हो। परिणामतः भृंगों की नई प्रजाति का उद्भव होता है। Now we will study about the evolution and classification. First of all, we will take the evolution. Evolution is change in the heritable characteristics of biological population over successive time period and things as a species, and propose that each species could be defined by the features that perpetuated themselves generation after generation. Next, we will take classification. It is the establishment of a hierarchical system of category on the basis of presumed natural relationships among organisms. Next is the characteristics. Characteristics are details of appearance or behavior or a particular form or a particular function. For example, the presence of limbs in the human being and the other animal is the characteristic feature, as we are having 4 limbs. That is, one pair of limb which is present at the anterior side of the body is known as the forelimbs, and which is present on the posterior side is known as the hind limbs. Same thing happens in the other animal also. Like that, the plants are green, and as a result of which they are able to perform the process of photosynthesis. Most organisms show some basic characteristic features, such as cell is the basic unit of life. In all organisms, the characteristics in the next level of the classification would be shared by most, but not all organisms. A basic characteristic of cell design that differ among different organisms is whether the cell has a nucleus. Bacterial cells do not, while the cells of most other organisms do. Among organisms with nucleated cells, which one are unicellular and which one be multicellular? Now the question arises, what is the meaning of the unicellular organism and multicellular organism? The organism whose body is made up of the single cell is known as the unicellular organism, and the organism whose body is made up of the numerous cells is known as the multicellular organism. Now, this property make a very basic difference in body design because of a specialization of cell types and tissues among multicellular organisms. Whether they can undertake photosynthesis or not will provide the next level of classification. Among the multicellular organisms that cannot do photosynthesis, whether the skeleton is inside the body or around the body, will mark another fundamental design difference.
we can now see that even in these few questions that we have considered, a hierarchy is developing that allow us to make classification group. The more characteristics two species will have in common, the more closely they are related. And the more closely they are related, the more recently they will have a common ancestor. For example, a brother and sister. These real brother and sister, they are having common ancestor, that is their parents. They look quite similar to each other. On the other hand, the cousin brothers and sister, they are having common ancestor, that is their grandparents. They will also look similar, but there are points of differences are more as comparison to that of the real brother and sisters. In this way, the classification of a species in fact a reflection of their evolutionary relationship. Now, we can build up small groups of species with recent common ancestors, then supergroups of these groups with more distant common ancestors, and so on. And theoretically, we can keep going backwards like this until we come to the notion of a single species at the very beginning of evolutionary time. In this case, that at some point in the history of the earth, non living material must have given rise to life. There are many theories about how this might have happened. It would be interesting to come up with theories of our own. For this, we had to consider some example, and for this, we had to trace evolutionary relationships. अब हम विकास एवं वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इन सिद्धांतों के आधार पर हमारे चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रजाति के बीच हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह एक प्रकार से समय को पीछे ले जाने अर्थात भूतकाल में ले जाने की प्रक्रिया है। ऐसा हम विभिन्न प्रजाति के अभिलक्षणों के पदानुक्रम का निर्धारण करके कर सकते हैं। इसको प्रारंभ करने के पहले हमें कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जैव विकास। जैव विकास का अर्थ होता है जीव जंतुओं की उत्पत्ति उनकी पीढ़ियों में हुए क्रमिक आनुवंशिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव विकास कहते हैं। जैव विकास एक धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन होता है। अगली परिभाषा है वर्गीकरण की। जीवधारियों को उनकी समानता व असमानता के आधार पर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों में रखने की विधि को वर्गीकरण कहते हैं। इसी प्रकार है अभिलक्षण। अभिलक्षण अर्थात हमारे जो बाह्य अथवा व्यवहार का जो विवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिलक्षण। अर्थात बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। जैसे मनुष्य में पादों की उपस्थिति, जैसे हमारे 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, जबकि अन्य चौपायों में 4 पैर पाए जाते हैं। इसी प्रकार पौधे हरे होते हैं और उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में एक समान होते हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई होती है। जैसा कि हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है, परंतु सभी जीवों में नहीं। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत अभिलक्षण का एक उदाहरण कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति या अनुपस्थिति होती है, जो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है।
केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिक अथवा बहुकोशिक होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर बताता है जो कोशिकाओं एवं उत्तकों के विशिष्टीकरण के कारण होता है। उत्तकों का मतलब क्या होता है कि एक समान कोशिकाओं के वे समूह जो रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से समान होते हैं उन्हें हम उत्तक कहते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या न होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। उन बहुकोशिक जीवों जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है में कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंतःकंकाल होता है तथा कुछ में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तो इस प्रकार से अंतःकंकाल की उपस्थिति या बाह्य कंकाल की उपस्थिति वह भी एक अभिलक्षण होता है जो कि उनमें अंतर स्थापित करता है। और इन प्रश्नों के आधार पर हम देखते हैं कि एक प्रकार का पदानुक्रम विकसित होता है और जिसके आधार पर वर्गीकरण के लिए समूह बना सकते हैं। दो प्रजातियों के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही अधिक निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। इसे हम उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। जैसे सगे भाई बहन अति निकट संबंधी होते हैं, इनके समान पूर्वज होते हैं अर्थात वे एक ही माता पिता के संतान होते हैं। जबकि हमारे चचेरे या ममेरे भाई बहन जो रहते हैं वह भी हमारे से संबंधित होते हैं परंतु हमारे अपने सगे भाई या बहन से कम हैं। उसका एक मुख्य कारण यह है कि उनके पूर्वज जो थे वो समान थे अर्थात दादा दादी या नाना नानी जो थे वो 2 पीढ़ी पहले के हैं न कि 1 पीढ़ी पहले के। अब इस प्रकार से स्पीशीज़ या जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का एक आईना होता है। अतः हम स्पीशीज़ के एक ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में एक समान थे। इसके बाद इन समूहों का एक बड़ा समूह बनेगा जिनके पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक दूर अर्थात समय के अनुसार के हों। सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार से हम भूतकाल की कड़ियों का निर्माण करते हुए विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं जहां मात्र एक ही प्रजाति थी। यदि यह सच है तो जीवन की उत्पत्ति अवश्य अजैविक पदार्थों से हुई होगी। इसको समझाने के लिए कई प्रकार के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं और अब यह भी रोचक होगा कि यदि हम अपने नए सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सकें। प्रजाति जीवों का एक समान वाले लक्षणों का वह समूह जिसके सदस्य प्राकृतिक परिवेश में प्रजनन कर संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हों उसे प्रजाति कहा जाता है। When we try to follow evolutionary relationships or whenever we try to trace evolutionary relationship at the time, we have to identify characteristic as common. This characteristic in different organisms would be similar because they are inherited from a common ancestor. For an example, the fact that mammals have 4 limbs as the do birds, reptiles and the amphibians. The basic structure of the limbs is similar though it has been modified to perform different functions in various vertebrates. Such a homologous characteristic help to identify an evolutionary relationship between apparently different species. All similarities simply in organ shape are not necessarily because of common ancestry. Then we will take the examples of some specific type of organ. Among them, the first one is the homologous organ. The organ of different animals that are having a similar structure but differ in their functions, these are known as the homologous organ. Example for this is the arm of human, the wing of a bat, the leg of a dog and the flipper of a dolphin or whale. It means that they are all having, these are the diagram of these organs or these are the examples. You will see in this diagram they are having almost same structure and origin but they are performing different functions. As the arm of human
It is helpful in holding some object. The wing of bat help in flying. The leg of a dog help in running or walking. And the flipper of a dolphin or whale help in the swimming. When we will consider the wings of birds and bats, for example, these two animals, they are having wings which help to fly them, but squirrels and the lizards do not. So birds and bats are more closely related to each other than the squirrels or lizard. जब हम विकासी संबंध को खोजने का प्रयास करते हैं तो हम समान लक्षणों की पहचान किस प्रकार कर पाएंगे? विभिन्न जीवों में यह लक्षण समान होंगे क्योंकि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। उदाहरण के तौर पर पक्षी, सरीसृप एवं जल स्थलचर अर्थात उभयचर की भांति ही स्तनधारियों के भी 4 पैर होते हैं। सभी पैरों में की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न कशेरुकियों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण होता है, फिर भी पैरों की आधारभूत संरचना एक समान होती है। तो ऐसे वे लक्षण या वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं, उन्हें हम समजात अंग कहते हैं या वे अंग समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य की बाजू और हाथ, कुत्ते या घोड़े के अग्रपाद, चमगादड़ के पंख, व्हेल या सील के पंख। यदि इन अंगों की रचना का अध्ययन करें इन चित्रों में, तो हम देखेंगे कि इन सभी की उत्पत्ति और रचना लगभग एक समान है, किंतु इनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ किसी चीज़ को पकड़ने में सहायक होते हैं, कुत्ते या घोड़े के अग्रपाद उन्हें दौड़ने में सहायक होते हैं, चमगादड़ के पंख उन्हें उड़ने में सहायक होते हैं, व्हेल या सील के पक्ष या पंख उन्हें पानी में तैरने में सहायक होते हैं। हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले हमें कुछ जंतुओं के अंगों की रचना का अध्ययन करना होगा। जैसे पक्षी एवं चमगादड़ के पंखों को यदि हम बारीकी से देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उनकी जो दीर्घित उंगली के मध्य की त्वचा के फैलने से बनते हैं, परंतु पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बनते हैं जो परों से ढकी रहती है। अतः 2 पंखों के अभिकल्प या लक्षण, उनकी संरचना एवं संघटकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। Second category of organ is the analogous organ. These are the organs that differ in their basic structures or developmental origin but appear similar or perform similar functions are called analogous organs. For example, the wings of insects, bats and birds. इस प्रकार अंगों की एक अन्य श्रेणी भी होती है जिन्हें हम समवर्ती अंग कहते हैं। ये वे अंग होते हैं जो कि कार्य में समान होते हैं किंतु उत्पत्ति तथा संरचना में भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को हम समवर्ती अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख और कीटों के पंख। Now we will study about the fossils. As we had studied earlier that about the organ structure of the current species, we had decided that there are some points of variations are there and points of similarities are there. But such studies of organ structure can be done not only on current species but also on species that are not alive today. How do we know that this extinct species ever existed? We know that this from finding fossil. Now the question arises, what is the meaning of the fossils? Usually when organisms die, their body will decompose and be lost. But every once in a while, the body or at least some parts may be in an environment that does not let it decompose completely. If a dead insect gets caught in hot mud
For example, it will not decompose quickly and the mud will eventually harden and retain the impression of the body parts of the insect. All such preserved traces of living organism are called fossils. Or in other words, you may define fossil as usually when organisms die, their bodies will decompose and be lost. A remnant impression or trace of an animal or plant of a past geologic age that has been preserved in the earth crust is called a fossil. In this diagram, you will see the various kinds of fossil. This is the fossil of the tree trunk. This is fossil of the invertebrate ammonite. This is a fossil of an invertebrate trilobite. And this is fossil of the fish. And this is fossil of the dinosaur skull. जैसा कि अभी हमने अध्ययन करा कि जीवों के कुछ लक्षण एक समान होते हैं और कुछ लक्षण में अंतर पाया जाता है, तो उनके समान लक्षणों और अंतरों के आधार पर उन्हें अलग अलग प्रजातियों में हमने विभाजित किया था और इन लक्षणों के आधार पर उन अंगों के नामकरण भी किए गए थे। अब हम जीवाश्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि अंगों की संरचना केवल वर्तमान प्रजाति पर ही नहीं की जा सकती, वरन उन प्रजाति पर भी की जा सकती है कि जो अब जीवित नहीं है। अब हम कैसे जान सकते हैं कि ये विलुप्त प्रजातियां कभी जीवित भी थीं या अस्तित्व में थी भी या नहीं? यह हम जीवाश्म के अध्ययन के द्वारा ही जान सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जीवाश्म क्या है? सामान्यतः जीवों की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, तो जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह चट्टानों के परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म जीवधन अश्म अर्थात पत्थर कहते हैं। अब इस चित्र में हम जीवाश्म का कुछ उदाहरणों को देखेंगे। ये जीवाश्म पेड़ का तना है। ये जीवाश्म एक अकशेरुकी है जिसका नाम अमोनाइट है। ये जीवाश्म एक अन्य अकशेरुकी है जिसका नाम ट्राइलोबाइट था। ये जीवाश्म मछली का है जिसका नाम नाइट्रिया था। और ये जीवाश्म डायनासोर के कपाल का है। How do we know how old the fossils are? There are two components of this estimation as they are relative to each other. If we dig into the earth and start finding fossils, it is reasonable to suppose that the fossil we find closer to the surface are more recent than the fossil we find in deeper layers. The second way of dating fossils is by detecting the ratios of different isotopes of the same element in the fossil material. It would be interesting to find out exactly how this method works. In this pic, we will see that how do fossils form layer by layer. In the first step, we will see, let us start 100 million years ago, some invertebrates on the seabed die and are buried in the sand. More sand accumulates and sandstone forms under pressure. Millions of the years later, dinosaurs living in the area die and their bodies too
are buried in mud. This mud is also compressed into rock above the rocks containing the earlier invertebrate fossils. Then again, millions of years later, the bodies of the horse-like creatures dying in the area are fossilized in the rocks above these earlier rocks. And in this way, you will see that there are different organisms during the developmental period, or they are gradually become extinct, and they are buried under the sediments of the rocks and the sand, and they are formed as a fossil. अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। इस बात का आकलन करने के दो घटक हैं। यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में यह सोचना सही रहेगा कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। दूसरी विधि होती है फॉसिल डेटिंग की, जिसमें जीवाश्म पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। इस चित्र में हम देखेंगे कि जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं। 10 करोड़ अर्थात 100 मिलियन वर्ष पहले से प्रारंभ करते हैं। समुद्र तल पर कुछ अकशेरुकी जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा वे रेत में दब जाते हैं। धीरे धीरे और अधिक रेत एकत्र होती जाती है तथा अधिक दाब के कारण वह चट्टान बन जाती है। कुछ मिलियन वर्षों बाद क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर मर जाते हैं तथा उनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है। यह मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है, जो पहले वाले अकशेरुकी जीवाश्म वाले चट्टान के ऊपर बनती है। फिर इसके बाद कुछ और मिलियन वर्षों बाद इस क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीवों के जीवाश्म चट्टानों में दब जाते हैं। इसके काफ़ी समय उपरांत मृदा अपरदन, जल के प्रवाह के कारण कुछ चट्टानें फट जाती हैं तथा घोड़े के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे जैसे हम गहरी खुदाई करते जाते हैं, वैसे वैसे पुराने तथा और पुराने जीवाश्म प्राप्त होते हैं।